Good afternoon, students. Today we are going to do NCERT solutions of your first lesson, the last lesson. As we have completed vocabulary, text, and now we are going to do NCERT solution, and we are going to make complete discussion on it. First, these difficult words already have been discussed many times, but these are key terms of this lesson, so that's why I've added again. So first is in great dread of, being when you are in great fear, very much worried. Counted on, to trust on somebody. Thumped at the edges. Worn. Worn mean damage with use, or solid as is caused by frequent handling. Thumbed at the edges, it is used for that primer that book old Hauser was using. In unison, something happening or being done at the same time. A great bustle, noise, excited noise, an excited activity or a rapid active commotion. Commotion is noise, great noise. Reproach ourselves with, to feel guilty, to feel regret about something. Now these are questions, and even I'm discussing page wise because in your book page wise the questions have been mentioned. What was friends expected to be prepared with for school that day? आखिरी दिन फ्रेंड्स ने क्या स्कूल के लिए प्रिपेयर करना था? फ्रेंड्स वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स, क्योंकि पार्टिसिपल्स का उनको एक टॉपिक दिया गया था. द डे मिस्टर हेमल हैड टोल्ड द क्लास दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन दैट टॉपिक दैट डे, कि उसी टॉपिक पे ही विल आस्क क्वेश्चंस. So this is for 2 marks. I have combined all type of questions, 2 marks and 6 marks altogether. What did friends notice that was unusual about the school that day? If it comes for 2 marks, तो ये 2 नंबर वाले का आंसर है. And if it comes for 6 marks, तो उसका मैं आपको आगे बताऊंगा. It can be asked in 2 marks also and it can be asked in 6 marks also. कि आखिरी दिन ऐसा अनयूजुअल क्या था? यूजुअली व्हेन द स्कूल बिगिन देयर वुड बी अ लॉट ऑफ कमोशन. कमोशन इज नॉइज. जनरली स्कूल में शोर शराबा होता है, बट द डे एवरीथिंग वाज क्वाइट, एवरीथिंग वाज साइलेंट. इट अपीयर टू बी लाइक अ संडे विदाउट एनी नॉइज. एज ऑन संडे देयर इज नो नॉइज इन स्कूल or activity in the school. It seems that it was Sunday because there was total silence. However, the students were at their places and Mr. Hamel was walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. But students were there, and M. Hamel was teacher was also there, but there was no noise, and he was walking here and there carrying his ruler, his stick. What had been put up on the bulletin board? If you remember the situation when he was going to school and when he met the Smith and there was a rush on bulletin board, तो क्या लिखा था? The bulletin board notified the general public about an order from Berlin. एक order आया था बर्लिन से, वो order लिखा था उसमें. It stated that only German was to be taught to students in the schools of Alsace and Lorraine. कि अब Alsace and Lorraine में German language पढ़ाई जाएगी. What changes did the order from Berlin cause in school that day? Yes. अभी मैंने आपको कहा था कि अगर what was unusual on that day, ये वाला क्वेश्चन जो मैं कह रहा था आपको 2 marks का है, what was unusual, and if it comes for 6 marks, तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आपको ये क्वेश्चन नंबर जो पेज नंबर 8 का 1 है, ये आपको ऐड करना है, क्योंकि ये सारी वो सिचुएशन है कि आप कह सकते हैं कि व्हाट वाज अनयूजुअल ऑन दैट डे इन द स्कूल इफ इट कम्स फॉर 6 मार्क्स. द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हसल एंड बसल ऑफ द स्कूल लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल. हसल बसल, स्कूल में जो जनरली शोर शराबा होता है, वो सारा का सारा क्या हो गया था? स्टैंड स्टिल. उन ऑर्डर की वजह से सारी स्कूल में शांति हो गई थी.
M. Hamel, the teacher, became more sympathetic to his students. Sympathetic, उसकी सहानुभूति अपने स्टूडेंट्स के प्रति बढ़ गई थी. एंड टॉट इज लेसन विद मोर पेशेंस, और उस दिन अपना लेसन उसको बहुत पेशेंस से पढ़ाया उसने. द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव टू देयर क्लासेस, और उस दिन स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा अटेंटिव थे. द बैक बेंचेस वर नो मोर एम्प्टी एज दे यूज टू बी, और जनरली बच्चे जब बैठ जाते हैं तो उसके पीछे वाले बेंचेस खाली होते हैं. द विलेजर्स उस दिन खाली नहीं थे. द विलेजर्स हैड ऑक्युपाइड दो सीट्स, और आज गांव वाले लोग आए थे, वो बैठे थे पीछे वाली सीटों पे. दे हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू एम हेमल, एंड एक्चुअली दे वांटेड टू शो देयर रिस्पेक्ट टू एम हेमल. दे रिग्रेट इट, वो पछताए, नॉट अटेंडिंग द क्लासेस मोर देन दे डिड, और वो भी और क्लासेस अटेंड कर सकते थे लेकिन वो उन्होंने नहीं अटेंड कर पाए तो वो पछताए. द ऑर्डर ऑल्सो ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन द फीलिंग्स ऑफ द पीपल टुवर्ड्स देयर कंट्री एंड देयर नेटिव लैंग्वेज, और इस ऑर्डर से लोगों के अपने देश के प्रति, अपने मदर लैंग्वेज के प्रति जो व्यवहार, अपनी फीलिंग्स, सच में उस दिन उनको पता चली कि व्हाट इज़ importance of mother tongue. There was a general sadness about not being able to utilize the opportunity of learning French when it was easily accessible. और सारे लोग, people and student, all they were repenting, सब पछता रहे थे कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी जो यूटिलाइज की जा सकती थी फ्रेंच लैंग्वेज को लर्न करने की, वो उन्होंने खो दी. हाउ डिड फ्रेंड्स फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज? ये भी लास्ट डे के बारे में. फ्रेंच की फीलिंग अपने टीचर और स्कूल के बारे में कैसे बदली उसकी फीलिंग्स. फ्रेंच वॉज शॉक्ड व्हेन एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड दैट इट वॉज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन. फ्रेंच बहुत हैरान था जब उसको पता चला कि आज उनका लास्ट लेसन है फ्रेंच लैंग्वेज के ऊपर. ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकी नेचर, जो उसके टीचर का शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर था और वो जो टीचर का डंडा था, उस सब के बारे में आज फ्रेंच भूल गया. ही डेवलप्ड अ फॉन्डनेस for M. Hamel and the troubling idea of being separated from him forever. और उसके अंदर आज एक अटैचमेंट आई, एक फॉन्डनेस आया उसके प्रति, एक स्पेशल फॉन्डनेस, एक शौक होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ फीलिंग्स अपने टीचर के साथ उसको जुड़ी, और उसको बहुत, ये आइडिया उसको बहुत दुख दे रहा था. ट्रबलिंग, कौन सा आइडिया? कि वो अपने टीचर से दूर हो जाएगा. ही अंडरस्टूड द पेन एंड एजोनी. एजोनी इज ऑल्सो अनदर काइंड ऑफ पेन that you may understand. Pain in as a sense of feeling his teacher was undergoing. वो समझ सका कि आज उसके टीचर को कितना दुख हो रहा था. ही बिकेम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड हिज टीचर, और आज वो भी अपने टीचर के प्रति, उसके अंदर बहुत सहानुभूति पैदा हो रही थी. नाउ हिज स्कूल कैरीड अ डिफरेंट मीनिंग फॉर हिम. आज उसका स्कूल उसके लिए वो स्कूल न था जो पहले था. आज उसके स्कूल के प्रति कुछ डिफरेंट फीलिंग्स अराइज. हिज बुक्स एंड लेसन्स वर लाइक हिज ओल्ड फ्रेंड्स whom he couldn't give up. और आज उसको अपनी किताबें ना लग के दोस्त लग रही थी जिनको वो कभी छोड़ नहीं सकता था. गिव अप मतलब छोड़ देना. ही रियलाइज्ड विद पेन हाउ मच फ्रेंच मेंट टू हिम. आज इसको पता चला कि फ्रेंच कितनी इंपॉर्टेंट थी उसके लिए. एंड रिग्रेटेड नॉट बीइंग अटेंटिव टू हिज क्लासेस अर्लियर, और वो पछताया कि उसने अपनी क्लासेस अच्छे से अटेंड क्यों नहीं की. Suddenly he felt that the difficult concept had actually never been difficult. और आज उसको पता चला कि जिन चीज़ों को वो डिफ़िकल्ट मानता था वो सच में डिफ़िकल्ट थी ही नहीं. The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? आज लोगों को पता चला उस आखिरी दिन कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. दिस इज इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग एंड देयर लैंग्वेज. कैसे पता चला उनको? एम हेमल टोल्ड द स्टूडेंट एंड विलेजर दैट henceforth ओनली जर्मन वुड बी टॉट. henceforth नाउ ऑनवर्ड्स, उसके बाद वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. एम हेमल ने बताया कि उसके बाद अब जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स में. दोज हु कॉल्ड देमसेल्फ फ्रेंचमैन वुड neither be able to speak nor write it. और जो लोग अपने आप को फ्रेंचमैन कहते थे, यानी वो उन्हीं लोगों को कह रहे हैं कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन कहते थे लेकिन तुम ना फ्रेंच तुम्हें बोलनी आती ना लिखनी आती. ही प्रेज फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. उसने बहुत प्रेज की. ये उसकी पैट्रियटिज्म है, उसकी अटैचमेंट टू द लैंग्वेज है, उसकी डिवोशन एज ए टीचर है. तो ये एम हेमल के करैक्टर स्केच की बातें सारी. तो वो कहता है कि ये बहुत मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है, ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज़ फ्रेंच. ही सेड दैट फॉर द enslaved people their language was the key to the prison.
एनस्लेव्ड पीपल इन स्लेवरी, जो कोई किसी के गुलाम है, गुलाम लोगों के लिए सिर्फ एक चाबी ही थी, एक मदर टंग ही थी जो चाबी का काम करती थी। देन द पीपल रियलाइज हाउ प्रीशियस दैट लैंग्वेज वॉज टू देम, और तब लोगों को पता चला, लोगों का आई मीन द स्टूडेंट्स एंड द पीपल सिटिंग बिसाइड बिहाइंड, उनको पता चला कि उनकी लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट थी उनके लिए। दिस शोज पीपल्स लव फॉर देयर ओन कल्चर ट्रेडिशन इन कंट्री, इससे पता चलता है कि लोग अपने देश से कितना प्यार करते हैं, अपने कल्चर से, अपने ट्रेडिशन से, अपने रीति रिवाज से कितना प्यार करते हैं अपने कंट्री से। प्राइड इन वंस लैंग्वेज रिफ्लेक्ट प्राइड इन मदरलैंड, तो किसी का भी जो प्राइड होता है अपनी लैंग्वेज में, वो बेसिकली अपनी मातृभूमि में प्राइड होता है। एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। French things, will they make them sing in German, even the pigeon? What could this be? ये टेक्स्ट में बीच में क्वेश्चन आता है, और ये बेसिकली क्वेश्चन आता है फ्रेंच के माइंड में, जब उनका टीचर ये बता रहा होता है कि देन ऑनवर्ड्स जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट, तो तब उसके माइंड में आता है कि सभी को वो जर्मन सिखाएंगे, तो क्या वो कबूतर जो हमारे यहाँ कू कर रहे हैं, कू कर रहे हैं, इनको भी वो जर्मन लैंग्वेज सिखाएंगे? Alphonse Todets, the last lesson very prominently raised the question of linguistic and cultural hegemony of the colonial and imperial powers and their lust for controlling the world and influencing their cultures and identities. ये एक आप कह सकते हैं, यू मे हैव गॉन थ्रू योर हिस्ट्री, जो कर्नलिज्म था, साम्राज्यवाद था, उसमें दूसरों की लैंग्वेज के ऊपर अटैक किया जाता था। जैसे इंडिया में भी हुआ कि लॉर्ड कर्जन इन आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट द ईयर, तो उसमें उसने कहा था कि इनको इंग्लिश सिखाओ, जैसे इनका लैंग्वेज के ऊपर से कंट्रोल हट जाएगा अपनी मदर टंग से, वैसे ये गुलाम होते चले जाएंगे। तो ये बिल्कुल एक उसका लाइव एग्जाम्पल है। Prussian acquired the districts of Alsace and Lorraine in Franco-Prussian War. Prussian ने Alsace and Lorraine को जीत लिया, Franco-Prussian War जो उनका युद्ध हुआ, but they were not satisfied with mere political domination. लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उन पे राजनीतिक राज करना, सत्ता हथियाना तक वो सीमित नहीं थे। दे डिज़ायर टू एनफोर्स देयर ओन लैंग्वेज ऑन द पीपल ऑफ द डिफीटेड नेशन, और उन्होंने एनफोर्स करना, किसी के ऊपर ज़बरदस्ती लागू करना, उन्होंने अपनी लैंग्वेज भी वहाँ लागू की। दे रिलीज द ऑर्डर दैट फ्रॉम नाउ जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स रादर दैन फ्रेंच, और उन्होंने ऑर्डर भी पास किए कि अब इन स्कूल्स में, एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच वंडर्ड वेदर दे वुड मेक इवन पिजन सिंग इन जर्मन, और फ्रेंच को हैरानी हुई, क्या सारे लोगों को जब ये जर्मन सिखा रहे हैं तो क्या हमारे कबूतरों को भी ये जर्मन सिखाएंगे? इट मीन्स दैट दे हैड ग्रोन अप यूजिंग फ्रेंच एज देयर लैंग्वेज एंड नाउ स्नैचिंग अवे देयर लैंग्वेज फ्रॉम देम वुड बी अनफेयर एंड अनकाइंड। वो कहता है कि जैसे कबूतर भी एक फ्रेंच एनवायरनमेंट में पैदा हुए हैं, और अब उनसे उनकी लैंग्वेज छीनी जा रही है, और इवन बच्चों से छीनी जा रही है, लोगों से छीनी जा रही है, तो ये बहुत अनफेयर है, अनकाइंड है ये। द लैंग्वेज वाज एज नेचुरल टू देम एज क्विंग इज टू द पिजन, और बच्चों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए नेचुरल थी ये लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। जैसे कबूतर कू कू कर सकते हैं, वो कोई और लैंग्वेज नहीं बोल सकते, इसीलिए जितना कबूतर के लिए मुश्किल होता है, वो कंपेयर कर रहा है कि पिजन के साथ कंपेयर कर रहा है फ्रेंच पीपल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, कि जितना कबूतर के लिए मुश्किल है किसी और लैंग्वेज को बोल पाना, उतना ही मुश्किल हमारे लिए है। सो कंपल्शन टू स्पीक अनदर लैंग्वेज इज़ लाइक डोमिनेटिंग द फोर्स ऑफ नेचर एंड एनस्लेविंग इट, और किसी के ऊपर दूसरी लैंग्वेज थोपना, ये तो ऐसा हुआ जैसे नेचर के ऊपर कोई चीज़ आप फोर्स कर रहे हैं और नेचुरल चीज़ों को गुलाम बना रहे हैं, एनस्लेविंग। एज इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अल्टर द वे पिजन सिंग, अल्टर चेंज करना, तो जैसे कबूतर गाते हैं, बोलते हैं, जैसे उनको चेंज करना मुश्किल है, इन द सेम वे इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेप्ट अ लैंग्वेज विच इज़ फॉर्सिबल इम्पोज्ड ऑन देम, और इसलिए हमारे लोगों के ऊपर भी उतना ही मुश्किल है जो लोग, जो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को बोलना जो हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोपी गई हो। अडॉप्टिंग अ न्यू लैंग्वेज कॉज पेन एंड डिसकम्फर्ट, और नई लैंग्वेज वो भी जो ज़बरदस्ती थोपी जा रही हो, उससे बहुत डिसकम्फर्ट भी होता है और पेन भी होता है। सो माय डियर स्टूडेंट, दीज वर योर ऑल NCERT solutions and keywords. Please learn this. Very soon you will get a test on it.
Thank you.